Hello guys, you are welcome to my channel Know English. This is a unique platform where you will learn English in a different way, in a unique way. So therefore, I am with you to teach you English in a unique way, in a different way. First of all, I would like to tell you that everyone says, I want to speak English, I want to learn English, but how? कैसे सीख सकते हैं इंग्लिश? इंग्लिश को कैसे मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन. Everyone think that I feel like speaking English, I feel like talking in English, but the question arises how to speak English. सवाल उठता है कि इंग्लिश कैसे बोला जाए. This is the biggest topic. I think English is not a subject. It's just a language, just like Hindi. Got it? It's only a language. Never treat it as a subject. Otherwise, it will be your burden. नहीं तो आपका एक बोझा बन जाएगा. ठीक है. तो मैं इंग्लिश के बारे में कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है. ठीक है. इंग्लिश बोलते समय आपको हेजिटेशन कैसे दूर करना, आपका जो फियर होता है, जो डर होता है, उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं. ठीक है. मैं तो कोई बड़ा सा टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. ठीक है. मैं बिल्कुल न्यू हूँ यूट्यूब में. ठीक है. आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना. ठीक है. मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा. मैं भी औरों की तरह थोड़ा और हट के कुछ वीडियो बनाना चाहता हूँ रिगार्डिंग इंग्लिश. ठीक है. आपको जरूर ये इसमें कुछ आपको नया चीज़ मिलेगा, आपको एक यूनिक चीज़ मिलेगा मेरे चैनल में. ठीक है. मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को थोड़ा कुछ अनोखे तरीके से पढ़ाने के लिए इंग्लिश के सिलसिले में. ठीक है. इंग्लिश क्या एक भाषा है. You need three things. You need three things if you want to learn English, if you want to speak English. What three things? What are those three things? There are three things only. सिर्फ तीन चीज है. There are only three things. You need three books: translation, grammar, and dictionary. With the help of only three books, you will be able to speak English fluently. I won't tell you anything apart from this. मैं इसके अलावा आपको और कुछ नहीं बोलूंगा. आपको सिर्फ तीन चीज चाहिए. यू नीड ओनली थ्री थिंग्स. गॉट इट? सो लेट्स गो इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू वर्क ऑन वर्ड्स. यू हैव टू मेमोराइज. यू हैव टू रिमेंबर मोर एंड मोर वर्ड्स so that you will feel easy while talking in English. You won't feel uneasy while talking in English. If you have words, then your words comes out of your mouth effortlessly. And if you don't have words, then your words cannot be expressed because you don't have words. How will you express them? You need words to express your thoughts and ideas. Got it? So you have to work on words. You have to work on dictionary. You have to work on vocabulary power. Okay. So with the help of dictionary, you will be able to gather all necessary words, all useful words which are really used in practical life, in daily life. You don't need to remember those words which are not used in daily life. Got it? You can't remember all the words. You have to remember only those words which are really used in daily life, in practical life. Got it? If you remember those words and those words are not used in your daily life, then those words are useless for you. Because where will you use them? Where will you use them? आप इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे? क्वेश्चन तो ये उठता है ना. सिर्फ वर्ड को याद करना बहादुरी नहीं है. वर्ड को याद करना, ठीक है, वैसे वर्ड को याद करो जो आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होता है, वैसे वर्ड को याद किया जाता है. ना कि सारा वर्ड याद कर लो पूरा डिक्शनरी का, कोई फायदा नहीं होगा. अब वैसा ही वर्ड याद कीजिए जो डेली लाइफ में यूज होता है. ठीक है. ऐसा नहीं कि सब वर्ड याद कर लो. एंड आफ्टर दैट, whenever you memorize any word, you have to write them. You have to write those words on your notebooks. If you write those words on your notebooks, it will be easy for you to find out those words if you forget them in future. अगर भविष्य में अगर भूल जाते हैं तो आपको उसको फिर से ढूंढना आसान होगा आपके लिए उस नोटबुक के जरिए से. इसलिए कोई भी वर्ड याद करें उसको लिख लिया करो. कोई भी वर्ड याद किया, जरूर नहीं कि आप
याद नहीं करेंगे, ये आप नहीं लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इंसान कभी भी भूल सकता है। ठीक है, इंसान का दिमाग कंप्यूटर की तरह नहीं होता कि एक बार सेव कर दिए, अब जब तक नहीं हटाएंगे तब तक फाइल में मैंने फोल्डर में ही रहेगा, वैसा नहीं है। इंसान होता है कभी भी भूल सकता है, इंसान का दिमाग कंप्यूटर की तरह नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी वर्ड्स याद करते हैं उस वर्ड को लिख लिया करो नोटबुक में। जैसे आज आप 5 वर्ड याद किए, उस 5 वर्ड को याद लिख लिया करो, ताकि फिर उसको 10 दिन बाद फिर उसको रिवाइज कीजिए। अगर 10 दिन में अगर भूल गए तो उसको रिवाइज करना है, अगर यदि नहीं भूले हैं तो ठीक है, अगर भूल भी गए हैं तो फिर भी याद कर लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए इसको, और यदि नहीं भूले फिर भी देख लीजिए उसको, क्योंकि आपको भूल गया तो आपको देखना ही पड़ेगा आपको, ये तो जरूरी है, ना तो कोई फायदा नहीं है। कोई भी वर्ड को याद करना बहादुरी नहीं है, उस वर्ड को मेंटेन करना बहादुरी है, कि कब तक उसको मेंटेन कीजिए। सेकेंड थिंग यू हैव टू डू, you have to use those words which you remember, you have to use those words in your daily conversation with anyone। आप किसी से डेली कन्वर्सेशन करते हैं उसमें आपको इस्तेमाल करना है उसको, अदरवाइज यू विल फॉरगेट देम, गॉट इट। सो यू हैव टू यूज देम, यू डोंट हैव टू कीप देम विद यू इन योर माइंड, यू हैव टू टेक आउट, यू हैव टू टेक दोज वर्ड्स आउट ऑफ योर माइंड, यू हैव टू से दोज वर्ड्स टू द व्यूअर, टू द लिसनर हु आर विद यू at particular time। So you have to use them in front of the people, in front of your viewers, friends, relatives. You don't need to remember only those words, you have to maintain those words, you have to use those words whenever you start speaking English to anyone। So this is the first thing which you must do, you have to remember words and you have to write them on your notebook, and at least 5 words, you have to remember at least 5 words and write them on your notebook। just do this only as far as words are concerned। जहाँ तक वर्ड का सवाल है, आप 5 वर्ड डेली लिखिए और उसको याद कीजिए, और उसको कभी भी भूल जाए तो उसको दोबारा फिर देख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका वर्ड हमेशा बना रहेगा, आपका दिमाग हमेशा वो इम्प्रिंट रहेगा, छपा हुआ रहेगा। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल नीड टू गो टू ग्रामर। ग्रामर टीचर्स रूल्स, ग्रामर हमें रूल्स सिखाता है, ग्रामर टीचर्स रूल्स, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू यूज पर्टिकुलर पैराग्राफ, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। so this is the things which grammar is telling us। so we need grammar, this is the second book which we must have, जो हमें जरूर मेरे पास होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। ग्रामर के बिना आप रूल्स नहीं सीख सकते हैं। इफ यू वांट टू लर्न ग्रामर्स, इफ यू वांट टू लर्न रूल्स रिगार्डिंग इंग्लिश, देन यू नीड ए ग्रामर बुक। सो ग्रामर इज द important thing if you want to learn about rules of grammar। if you have grammatical rules, then English will be easy for you, otherwise if you don't have knowledge about grammar, then maybe you can speak English incorrectly, in incorrect way। so that's why you need grammar to speak correct English। after that you need to go to translation book। with the help of translation book you will be able to practice whatever you learn from grammar book। if you are learning tense from grammar, then you will need to write some sentences in Hindi in translation notebook, and you have to translate those Hindi sentences into English with the help of grammatical rules। like मैं जाता हूँ, तो बोलते ना मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तो ये कौन सिखाता है हमें? ग्रामर सिखाता है। ग्रामर का जो सेंटेंस को लिख के आप ट्रांसलेशन कीजिए उसका रूल्स को समझते हुए, तो ग्रामर आपको रूल्स बताएगा, ट्रांसलेशन आपको प्रैक्टिस करने सिखाएगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड, मैं सो चुका हूँ, आई हैव स्लेप्ट। ये क्या है? ये रूल्स बता रहा है। लेकिन प्रैक्टिस किस में करना है? आपको ट्रांसलेशन में करना है। प्रैक्टिस जो भी कीजिएगा ट्रांसलेशन में कीजिएगा। ये 3 आपको चीज करना है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और एक फेक हिस्ट्री बनाइए, फेक स्टोरी, कहानी बनाइए, वो कहानी पर काम कीजिए। ठीक है, आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं पाएगा, इतना जरूर है। और आप ज़्यादातर न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या तो नया वर्ड मिलेगा आपको, वो नया वर्ड को आप लिख लीजिए। देख रहे हैं कि वर्ड आपको ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसको लिख लिया करिए, ताकि ये वर्ड आपको हमेशा फ्यूचर में काम आएगा। क्योंकि न्यूज़पेपर जो वर्ड होता है ना, वो स्टैंडर्ड टाइप का वर्ड होता है। ठीक है, वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। एंड यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। आपको मिरर के सामने बोलना है। ठीक है,
आपका जो एक्सप्रेशन है, पता चलेगा कि आप बोलते हैं तो उस समय आपका एक्सप्रेशन कैसा रहता है, उस एक्सप्रेशन को गौर करना है आपको, ठीक है। बस यही सब करना है आपको इंग्लिश सीखने के लिए, आगे इसमें कुछ नहीं है। मैं ये 3 चीज़ किया हूँ इंग्लिश सीखने के लिए, बस ग्रामर, ट्रांजेक्शन और डिक्शनरी, ये 3 चीज़ मैंने काम किया है, ठीक है। और जितने भी वर्ड्स याद करता था उसको एक्सप्रेस करते थे, उसके यूज़ करते थे सेंटेंस में, बस यही करते करते अभी यहाँ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। मैं बोलने में थोड़ा लड़खड़ाता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं स्टेमिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा तुतलाहट मेरे जवान में है, ठीक है। अदरवाइज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, बस थोड़ा सा झेलिएगा, यही मेरा एक समस्या है। मैं आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टीच यू इंग्लिश इन अ डिफरेंट वे, दिस इज माई मेन मोटो, दिस इज माई मेन मोटिव which I have told you right now. So if you like my videos, then please subscribe my channel so that you will get notification of my upcoming videos. So that's all for today.